Good afternoon, students. Yes. So, as you all know, yesterday we have discussed that we are going to do trigonometry here, right? So, let me revise the trigonometry first. Like, what is trigonometry? So, first thing you learned about trigonometry was how to measure angles. Okay. I think I've already discussed yesterday what we are going to do, but let me tell you again. We are going to do four things: compound angles, allied angles, multiple angles, and factorization, defactorization. Right? So if we are going to do these four things, we start with the very basics, which is measurement of angles. So I hope you know that till 10th standard, we only measured angle in degrees. But as we came in 11th standard, we introduced a new unit of measurement for angles, which was radians. क्या था वो? Radians. So, very simple. हमको खाली पता होना चाहिए कि how to convert degree to radian and radian to degree. So, to convert degree measure into radian measure, multiply by pi by 180. So simple. So, if for example, I have 60 degrees and I need to convert into radian, तो क्या करना है? Multiply 60 by pi upon 180. 0 0 cancel, 6 1 जा, 6 3 जा. पाई की वैल्यू हम लोग कभी जनरली नहीं रखते रेडियन मेजर में, तो इसके लिए रेडियन मेजर ओनली कम्स इन द टर्म्स ऑफ पाई. सो या हियर वी गॉट पाई बाय 3. You all know the symbol for radian. It is raised to c times. So 60 degree means pi by 3 radians. And what if I want to convert radian to degrees? So radian to degrees, again very simple. Just multiply by 180 upon pi. Degree to radian, pi by 180. Radian to degree, 180 upon pi. So suppose I need to convert pi by 2 radians into degrees. So मैं क्या करूंगा? Pi by 2 into 180 upon pi. तो पाई पाई कैंसल, 2 से डिविजिबल है 90. सो मुझे क्या मिल जाएगा? 90 डिग्रीज. मीनिंग पाई बाई 2 रेडियन इज 90 डिग्रीज. आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो let's move forward if this is the case. The next is 10th standard revision. You might think it is very basic, but yes, it is very important to know. So if in a right angle triangle, this angle is theta. So theta के respect में I have 3 sides. The opposite side O, the adjacent side A, and obviously the hypotenuse. तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग ने 3 साइड को नाम क्या दिया है? अपोजिट, एडजेसेंट. एडजेसेंट मतलब बाजू वाली, और ऑब्वियसली एक हाइपोटेन्यूज. So sin theta is defined as opposite upon hypotenuse. So here opposite is y, hypotenuse is h. So my answer will be y upon h, right? Similarly, cos theta. Cos theta क्या डिफाइन है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट कौन है यहाँ पे? x. हाइपोटेन्यूज इज h. So x upon h. Same is for tan, sec, and cosec, cot. I hope you all remember this. For this, I think you remember OH, AH, and OA. स्कूल में टेंशन में सीखा होगा ना. यहाँ पे क्या होता है? साइन, ये कॉस, और ये टैन. और उसके रेसिप्रोकल्स मींस कोसेक उसके नीचे, सेक यहाँ पे, और यहाँ पे कॉट. So this is basic 10th standard trigonometry. Now, another thing which is important in trigonometry is signs of trigonometric ratios.
So that means in quadrants. So we all know in first quadrant, we have 0 to 90 degrees. Second quadrant, 90 to 180 degree. Third quadrant, 180 to 270. And fourth, 270 to 360 degrees. Right? So very simple. इसके लिए तुम लोग ने क्या याद रखा? तो ASTC. ASTC. A means all are positive in the first quadrant. S means sine and cosec are positive. अगर साइन कोसेक पॉजिटिव है तो जो बाकी के बचे वो हम लोग मानते हैं क्या है? नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट T. T is for tan and cot are positive. अगर tan पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल विच इज cot, that is also positive. And fourth C. C means cos and उसका रेसिप्रोकल sec. तो इस तरह से वी यूज टू रिमेम्बर ASTC, ऑल सिल्वर टी कप्स. ऐसा कुछ आप लोग ने याद रखा होगा. ऑल साइन एंड कोसेक, tan and cot, cot and cos and sec. एंड लास्टली द फेवरेट स्क्वायर आइडेंटिटीज. कितने आइडेंटिटीज हम लोग के पास? 3. फर्स्ट, sin square theta plus cos square theta equals to 1. Second, 1 plus tan square theta equals to sec square theta. And third, 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. ये 3 आइडेंटिटीज थी हम लोग के पास. इसके अलावा डू यू रिमेम्बर एनीथिंग एल्स विच यू यूज टू मेक? जैसे जब भी व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, लाइक हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते थे फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड ऑल. तो मुझे तो मेरे टीचर ने कह के रखा था कि फर्स्ट व्हेन यू गो इनटू द एग्जाम, मूव टू द लास्ट पेज ऑफ द सप्लीमेंट एंड मेक दैट टेबल. क्योंकि वो टेबल याद तो रहता नहीं था. बट व्हेन वी केम इन 11th स्टैंडर्ड, धीरे धीरे व्हेन आई लाइक यूज दैट टेबल वाज वेरी इजीली मेमोराइज्ड बाय मी. सो अभी भी इफ यू डोंट रिमेम्बर द टेबल, लास्ट पेज पे जाओ और बना लो पहले. बट हियर इज दैट टेबल. फर्स्ट, अभी तो हम लोग को रेडियन पता है, तो वी ऑल्सो सी एंगल्स इन रेडियंस. 0 डिग्री, 30 डिग्री आर स्टैंडर्ड एंगल्स. 90 तक हम लोग को पता था. 180, 270, 360 हम लोग को अभी पता चल रहा है. साइन के लिए क्या होता है? साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1. अनदर कॉस के लिए सेम, उल्टा, मतलब पहले 1 फिर √3/2 एंड सो ऑन. इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज पूरा 10th स्टैंडर्ड आप लोग ने यही किया है. सो आफ्टर दिस द 10th स्टैंडर्ड गेट्स over. So let us do some questions based on this, some topics we learned till now. So the questions are, 2 questions are there. First, if this is given equals to, options are 0, 1, sin theta and cos theta. So basically अगर मुझे solve करना है तो obviously मुझे क्या लेना पड़ेगा? LCM. So let's take LCM. मैं ये टर्म्स और ये टर्म को साथ में लिख लेता हूं और एलसीएम लेता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसमें 1 प्लस कॉस है, इसमें 1 माइनस कॉस. सो आई कैन राइट इट एज 1 को ऐसे लिख लिया, फिर ये प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. साइन थीटा और बाकी के 2 को साथ में. कैन आई टेक माइनस कॉमन? I think I can take minus sin theta common from those, right? What I'll get? I'll get sin square से sin बचेगा upon 1 plus cos. Cos को c लिख रहा हूँ बार बार, cos theta minus, नहीं प्लस, माइनस तो कॉमन आ गया, यहाँ से sin कॉमन, 1 upon 1 minus cos. Now if I take LCM, what will I get? यहाँ पे 1 plus cos upon sin माइनस साइन इंटू, ये क्या हो जाएगा? साइन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस. तो 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. a स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 एंड cos स्क्वायर इज cos स्क्वायर. So here we go. I can write this as 1 plus. अच्छा, यहाँ पे भी LCM ले लूं मैं? Yes, I should take LCM here also.
So if I take LCM in these both, I get sine plus 1 plus cos upon sine minus sine into, यहाँ पे we can open the bracket, sine into 1 sine minus sine into cos plus 1 plus cos upon 1 minus cos square क्या होता है? Sin square. करेक्ट. 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर. तो यहां से एक साइन तो कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है. पूरे डिनोमिनेटर में खाली क्या बचा है? साइन. सो हियर आई विल गेट साइन प्लस 1 प्लस कॉस माइनस अंदर आएगा तो सबका साइन चेंज. माइनस साइन प्लस साइन कॉस माइनस 1 माइनस कॉस. If you can see, almost everything got cancelled. साइन माइनस साइन प्लस 1 माइनस 1 कॉस माइनस कॉस. खाली क्या बचा? साइन कॉस अपॉन साइन. अगर साइन कॉस अपॉन साइन बचा है तो यहाँ से साइन एंड साइन भी कैंसल. सो माय फाइनल आंसर इज, साइन साइन कैंसल हो, सी कौन था? सी वाज कॉस थीटा. सो माय फाइनल आंसर इज डी, ऑप्शन डी, कॉस थीटा. Very simple, just LCM we have to take. Next sum. Next sum is important. Here we'll see how to use the trigonometric 10th standard exactly, what we'll use from 10th standard. So next sum में मुझे sec theta का वैल्यू दिया है और theta बोला है 3 pi by 2 to 2 pi. If you don't know, 3 pi by 2 means 270 degrees and 2 pi means 360 degrees. So अगर 270 से 360 डिग्री है तो 270 यहाँ पे होता है और 360 यहाँ पे होता है. So my theta is in which quadrant? Fourth quadrant. Fourth quadrant theta क्यों दिया है? क्योंकि ASTC से मुझे पता है fourth quadrant में cos and sec are positive. So theta is in fourth quadrant. क्लियर है? चलो मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है. Common sense, if I want to find the value of this, I need tan theta, cosec theta, cot theta and cosec theta. मैं उनका वैल्यू फाइंड करके इसमें क्या कर दूंगा? We'll substitute it here and we will get our answer. So to find tan theta, cosec, cot and sec cot theta, I have been given sec theta is √2. sec theta वैसे भी नहीं पसंद है, cos में कन्वर्ट कर लो. cos theta is reciprocal, so cos theta आ जाएगा 1 upon √2. Now, how do we use a right angle triangle here? Please note. cos theta हम लोग को पता है होता है adjacent upon hypotenuse. So we'll make a triangle, a right angle triangle. This is theta. थीटा के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड ये रही, उसकी वैल्यू क्या दी है? 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? √2. सो इफ आई यूज पाइथागोरस, अपोजिट की वैल्यू क्या जाएगी? 1. प्लीज टेक, 10 सेकेंड दे रहा हूं मैं, प्लीज टेक ये 1 वैल्यू कैसे आएगी? यू कैन यूज पाइथागोरस मेंटली. आई होप यू गॉट इट. ओके. अभी अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? tan, cot and cosec. वेरी सिंपल. सो यहां से व्हाट आई विल गेट? tan theta. tan theta is opposite 1 upon adjacent 1. 1 upon 1 is 1. मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव. इसके लिए द वैल्यू विल बी -1. सिमिलरली मुझे क्या चाहिए? cot theta. cot theta तो निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan theta. तो -1 का रेसिप्रोकल इज -1. एंड लास्टली cosec theta. cosec theta क्या होता है? याद है? हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट. हाइपोटेन्यूज कौन है? √2. अपोजिट कौन है? 1. सो आंसर इज √2. बट थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो -√2. ये सब की वैल्यूज यहाँ पे रख दो. सो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा इज -1 माइनस cosec थीटा इज -√2 अपॉन 1 प्लस cot थीटा अगेन -1, cosec theta is -√2. So what we get? 1 - 1 cancel.
ऊपर मिला -√2 अपॉन नीचे 1 - 1 कैंसल, माइनस माइनस +√2. Both will get cancelled and I will get answer as -1. I hope it is clear. So my answer is -1. This is the best way to use the right angle triangle definition. Opposite hypotenuse, adjacent hypotenuse, opposite adjacent. So if this is clear, let us move forward. ये तो अभी तक हम लोग ने क्या किया? 10th standard. Let us move forward. तो 11th standard. 11th standard में पहले when you used trigonometry, I guess the major thing you must have done that will be what? That will be compound angles. तो compound angles पे आते हैं. What is compound angles? There are 6 formulas. Do you remember 6 formulas? 2 for sine, 2 for cos and 2 for tan. Cosec sec cot में वैसे भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हम लोग को पसंद नहीं है, as we can easily convert them into sine, cos and tan. So let me revise this formula. Cos A minus B, cos A cos B plus sin A sin B. A प्लस बी में क्या होता है? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस. सिमिलरली साइन A प्लस बी, साइन A cos B प्लस cos A sin B. साइन A माइनस B, साइन A cos B minus cos A sin B. And same is for tan. Same is for tan. Tan A plus B. I hope you all remember this formula. Yesterday I told you to revise at least the formula so our lecture can go smoothly. So now how to use this formula? It is very important to use this formula from both sides. Meaning I need to know the formula from both sides. अगर कोई क्वेश्चन में cos A minus B दिया है तो I should know it is cos A cos B plus sin A sin B, as well as अगर कोई क्वेश्चन में cos A cos B minus sin A sin B दिया है तो I should know that is equal to cos of A plus B. So both the ways, दोनों साइड से मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए. Now what are compound angles? Just the definition. Compound angles means any angle, two angles which are of the form A plus or minus B. These are called compounding. तो अभी से if in a sum I notice or I see any angle which any two angles which are either getting added or subtracted, either getting added or subtracted, जैसे A plus B हो रहा है या A minus B हो रहा है, मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? Compound angles. This is a very big hint to use compound angles. If in a sum I see two angles getting added or subtracted, we should think of compound angles. And let's move forward. I hope ये formula याद है. Still 30 seconds हम लोग लेते हैं. Go through this formula. I'll give you 30 seconds. Please just concentrate on the screen and again revise these formulas. Okay. All done. Let's move forward. Here are the question based on compound angle. So if we see the first question, it's a prove that question. Very famous question in trigonometry. Almost all the questions you must have done will be of prove that. दो साइड दिया होगा LHS and RHS. We have to prove. So if you remember, क्या बोला था? दो एंगल X और Y या तो ऐड हो रहे हैं या तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. क्या सोचना है हमको? कंपाउंड एंगल्स. So as you can see in the first question, X, Y are getting added and subtracted. So think of formula for compound angle. So if I take left hand side, what is my left hand side? Cos A minus B. फर्क नहीं पड़ता A और B की जगह पे कौन है? तो cos A minus B is cos X cos Y plus sin X sin Y.
अपॉन नीचे है कॉस एक्स प्लस वाई, सो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहां तक तो हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया। अभी अगर इफ वी डोंट नो हाउ टू प्रोसीड द क्वेश्चन, ऑलवेज लुक एट द अदर साइड। If I look at the other side, I may get some hint on what to do in my next step. So यहाँ पे हम लोगों ने देखा मुझे कॉट चाहिए, कॉट। अगर मुझे कॉट चाहिए तो कॉट मीन्स क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। कॉट मीन्स क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। कॉट इज कॉस अपॉन साइन। नाउ मेरे पास कॉस पहले से है, यहाँ पे कॉस कॉस। तो अगर मुझे कॉट चाहिए तो मुझे डिनोमिनेटर में कौन चाहिए, साइन। मतलब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन करना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल कौन से है, एक तो एक्स है और एक तो वाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स साइन वाई। तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉट। सो इफ आई डू दैट, मुझे मेरे पास क्या आएगा, ये तो कॉस एक्स कॉस वाई डिवाइड किससे किया, साइन एक्स साइन वाई। सेम यहाँ दूसरा न्यूमरेटर के साथ कौन है, साइन एक्स साइन वाई। इसको भी किससे डिवाइड कर लिया, साइन एक्स साइन वाई से। ये तो हो गया मेरा न्यूमरेटर डिवाइड। सेम काम कहाँ पे करना है, डिनोमिनेटर में। सो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसको अगेन डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस यहाँ पे क्या था, साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसको भी डिवाइडेड बाय साइन एक्स साइन वाई। एंड इफ यू आर रियली पेइंग अटेंशन, यू मस्ट हैव नोन कि हैंड स्क्रूड हो गया है। क्यों, बिकॉज साइन एक्स साइन वाई कैंसल, वन बचेगा, ये भी कैंसल, वन बचेगा। यहाँ पे cos x अपॉन साइन एक्स, cos x upon sin x, this will be cot x, this will be cot y, and same here. So numerator में क्या बचा, cot x into cot y plus 1 upon denominator में same cot x into cot y minus 1, which is equals to RHS. This is the answer, hence proof. I hope you are getting it. So let's move into the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस कंपाउंड एंगल मींस दो एंगल या तो ऐड हो रहे हैं या तो सबट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी कैन मार्क इट स्टार। सो यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई सेम कॉस, सो आई कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ कॉस a प्लस बी एंड कॉस a माइनस बी। सो लेट्स यूज ऑब्वियसली LHS से स्टार्ट करेंगे हम लोग। LHS में है cos x प्लस वाई, तो cos x, cx लिख रहा हूं, फाइन ना, बहुत आलसी है। cos x cos y माइनस sin x sin y, ये ब्रैकेट कंप्लीट, इनटू cos x माइनस y cos x cos y प्लस sin x sin y। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद वी सी अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न, कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ अगेन याद करो क्या बोला था, if I get stuck in a step, we should see the other side. Other side is the biggest hint. Other side में please see cos square चाहिए but angle is y, मतलब cos square के साथ y होना चाहिए, और sin square चाहिए but the angle is x। तो cos square के साथ y, sin square के साथ x। तो यहाँ पे here cos square के साथ y, ये तो मेरे पास रेडी है, और साइन स्क्वायर के साथ x ये भी रेडी है। ये दोनों जो
दूसरे बचे हैं, दैट आर माई कल्प्रिट्स, दिस एंड दिस। कॉस स्क्वायर के साथ x नहीं चाहिए, कॉस स्क्वायर के साथ y चाहिए। सो वी नीड टू चेंज दिस टू। तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये x है, अगर मैंने साइन स्क्वायर कर दिया तो साइन स्क्वायर x बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, वेरी गुड। अगेन क्या याद आना चाहिए? आइडेंटिटीज। कॉस स्क्वायर को आई कैन राइट 1 - sin स्क्वायर x, और ये कॉस स्क्वायर y तो डिसाइड हुआ था, वैसे ही रखना है। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स को वैसे ही रखो। साइन स्क्वायर वाई आई कैन राइट 1 - cos स्क्वायर वाई बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। एंड बस सम इज ओवर, जस्ट आई हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स। तो ये हो जाएगा 1 × cos स्क्वायर वाई, cos स्क्वायर वाई, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर वाई। इफ यू कैन सी माइनस प्लस दिस गेट्स कैंसल्ड, तो फाइनली क्या बचा? cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, which is equal to again RHS, hence proof. I hope you are getting it. वेरी सिंपल। तो बेसिकली कंपाउंड एंगल में अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन व्हाट शुड वी डू? फर्स्ट वी मस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल्स। फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद हम लोग फंस जाते हैं। तो अदर साइड देखना है, अदर साइड से हिंट लेना है, एंड अकॉर्डिंगली वी शुड मॉडिफाई। So both the questions we have done the same thing. Use compound angles, see the other side, accordingly adjust the trigonometry, and you can do the question. Okay. Next question. So compound angles के बाद what you have done? I think allied angles. Do you remember allied angles? Allied angles, the way I like to think is in 2 steps. Please listen to me very carefully. इसके बाद कभी भी allied angle में confusion होगा नहीं, जो लोग को आज तक हो रहा था. So if you are listening to me here, allied angle में मुझे 2 चीज देखनी है. First is the quadrant. First is the quadrant. Quadrant से मुझे क्या मिलती है? Sin. क्वाड्रेंट से मुझे क्या मिलती है? साइन. साइन मतलब प्लस माइनस, साइन थीटा वाला नहीं. नेक्स्ट आई नीड टू लुक एट इज एंगल. बेसिकली विच एंगल एम आई इन. तो अगर एक्स एक्सिस पे एंगल होता है, एक तो 0, एक पाई. वाई एक्सिस पे होते हैं π/2 और 3π/2. Right? So second is on एक्सिस. कौन से एक्सिस पे है? अगर मेरा एंगल y एक्सिस पे है तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म चेंज हो जाएगा. अगर एंगल y एक्सिस पे है तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म चेंज हो जाएगा. चेंज किससे हो जाएगा? उसके को वाले के साथ. That means sin will get changed to उसका को मतलब कोसाइन, and vice versa. Sec will get changed to cosec and vice versa. Finally, tan will get changed to cot and vice versa. I hope you remember this. फर्स्ट वापस पहला क्वाड्रेंट देखना है, वेरी सिंपल. क्वाड्रेंट देखना तो बहुत इजी होता है. सेकंड आई नीड टू लुक वेदर एंगल इज ऑन विच एक्सिस. अगर y एक्सिस पे है π/2 है या 3π/2 है तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म विल गेट चेंज्ड. किसके साथ? को वाले के साथ. एंड एंगल अगर x एक्सिस पे है तो नो चेंज. मतलब अगर साइन दिया है तो साइन रहेगा, कॉस दिया है तो कॉस रहेगा, टेन दिया है तो टेन रहेगा, कॉट दिया है तो कॉट रहेगा, एंड सो ऑन. बराबर. सो लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल. अगर मुझे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन 180 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो दो चीज करनी है, ये पाई माइनस थीटा। तो फर्स्ट चीज इज क्वाड्रेंट से साइन डिसाइड करो। तो पाई माइनस थीटा, पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ए एस टी सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या देखना है, एंगल ऑन एक्सिस, पाई। पाई कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो नो चेंज, मतलब साइन का क्या रहेगा, साइन, सिंपल। और थीटा एज इट इज। If I take some other example, cos pi by 2 plus theta, cos pi by 2 plus theta। चलो पहले देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है। पाई बाय 2 मतलब 90, 90 माइनस थीटा मींस वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सॉरी 90 प्लस थीटा है, वेरी सॉरी। पाई बाय 2 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मींस वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव। एंड माय एंगल पाई बाय 2, पाई बाय 2 मींस कौन सा एक्सिस पे आता है, ये रहा वाई एक्सिस पे। तो चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। सो इफ कॉस चेंजेस टू साइन, ये हो जाएगा साइन, और थीटा एज इट इज। सो cos pi by 2 plus theta is equals to minus sin theta. I hope it is very clear. एक और लास्ट की सम पे बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सम पे अभी डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चंस ऑन allied angles are very simple. Just you need to follow these two steps. If you follow these two steps, there is no question in where you can go wrong. Let's see. नेक्स्ट इज प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव द फॉलोइंग तो हर बार आ जाता है, कैसे हर बार आता है, बिकॉज मेनली ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रूव द फॉलोइंग। सो लेट्स सी, एलएचएस ही लेंगे ऑब्वियसली। एलएचएस, एलएचएस में वी हैव बहुत सारे एंगल्स, एक एक करके लेते हैं। एलएचएस बाद में लिख लेंगे, बहुत सारे एंगल्स है। लेट्स सी, फर्स्ट इज कॉस पाई प्लस एक्स। we need to see two things, pi plus x, a s t c, 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, बराबर। चलो, पाई प्लस एक्स मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड। थर्ड में कॉस इज नेगेटिव। नेक्स्ट, एंगल कौन सा एंगल है यहाँ पे, पाई। पाई मतलब कौन से एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे। तो इफ माय एंगल इज ऑन एक्स एक्सिस, देयर विल बी नो चेंज। कॉस का क्या रहेगा, कॉस, एंड एक्स रिमेन्स एज इट इज। तो कॉस पाई प्लस एक्स की वैल्यू माइनस कॉस एक्स। सेकेंड टर्म इज कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स को मैंने लिखा 0 माइनस एक्स, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, ऑब्वियसली 0 माइनस एक्स फर्क नहीं। अगेन 0 माइनस एक्स, ये रहा 0 माइनस एक्स, मतलब वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस है, क्या होता है, पॉजिटिव। अगेन वी हैव टू सी नाउ 0, 0 कौन से एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे। तो अगेन देयर इज नो चेंज। तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस एक्स। थर्ड, थर्ड इज साइन पाई माइनस एक्स, एंड फोर्थ इज कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। नाउ अभी ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। सो इन 10 सेकेंड्स यू कैन कंप्यूट दीज आंसर। फाइन कैलकुलेशन है, इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू कैलकुलेट दीज आंसर्स एंड देन आई विल राइट। Sin pi minus x and cos pi by 2 plus x.
ओके डन. साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट है पाई बाई टू माइनस एक्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव. पाई, एंगल ऑन एक्स एक्सिस मींस नो चेंज, साइन का रहेगा साइन एंड एक्स विल बी एज इट इज. नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग, cos पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव एंड पाई बाई टू एंगल इज ऑन y एक्सिस, तो चेंज हो जाएगा. cos किस में चेंज होगा? साइन में, तो साइन x. तो नाउ आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड विद LHS. LHS क्या होगा मेरा? cos पाई प्लस एक्स माइनस cos x into cos x upon sin x into minus sin x. Very simple. And as you can see, minus minus cancel. Cos into cos is cos square x. Sin into sin is sin square x. And cos square x upon sin square x is cot square x, which is equal to RHS. Hence proved. It is very simple. Allied angle का question wrong होना बहुत मुश्किल है. Next, let's see the next example. Okay, here is the next example. Important question. So, by using allied angles, I need to prove this equals to 2. Right hand side is very simple. 2. Obviously, कौन से side से start करूंगा? Left hand side से. So, left hand side में मैंने देखा there were 4 different angles, pi by 8, 3 pi by 8, 5 pi by 8, 7 pi by 8. तो ये एंगल को और ये एंगल को मैंने कुछ इस तरह से लिखा. साइन स्क्वायर 5 pi by 8 can be written as pi by 2 minus pi by 2 minus क्या लिख सकता हूं मैं? प्लस सॉरी pi by 8. आई होप यू गेट दिस. अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 5 pi by 8 आएगा. प्लीज चेक दिस. इफ यू टेक एलसीएम क्या मिलेगा मुझे? 5 pi by 8. मिल रहा है ना कि रॉन्ग कर दिया मैंने? नहीं नहीं मिल रहा है. सो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, इट इज एन एलाइड एंगल. देखो ASPC अभी बनाने की जरूरत है क्या? लेट्स मेक इट सो यू कैन इजीली सी. पाई बाई 2, ये रहा पाई बाई 2 प्लस एंगल इज थीटा. तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव. पाई बाई 2, पाई बाई 2 एंगल ऑन y एक्सिस, तो साइन का क्या हो जाएगा? cos एंड पाई बाई 8 एज इट इज. सिंपल. सिमिलरली मैं साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 तो क्या लिख सकता हूं? ये तो मैंने इसको लिखा और आई कैन राइट दिस एज 7 पाई बाई 8. एनी हिंट्स? पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8. प्लीज चेक. पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 होगा. राइट है ना? हाँ राइट. सो यहाँ पे सेम पाई बाई 2 प्लस एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन है मीन्स पॉजिटिव. हियर इट इज पाई बाई 2 एंगल ऑन y मीन्स साइन का क्या हो जाएगा? cos. और 3 पाई बाई 8 तो सेम टू सेम. So if I now substitute all these values in LHS, let's see what we'll get. Sin square pi by 8, so as it is रहा, right? Plus sin square 3 pi by 8, also as it is. उसके बाद sin square 5 pi by 8, क्या हो गया? Cos square pi by 8. And sin square 7 pi by 8 क्या हो गया? cos square 3 pi by 8. So if you can see these both sin square pi by 8 plus cos square pi by 8, अरे ये तो क्या बन गया?
trigonometric identity. And sine square 3 pi by 8, cos square 3 pi by 8. Again identity. Sine square plus cos square is 1. So 1 plus 1 equals to 2, which is equals to RHS. This was a very beautiful use of allied angles. If we don't know allied angles there, we would be stuck. So it's a very good example of how to use allied angles. I hope it is all clear. इसके बाद नेक्स्ट allied angle के बाद हम लोग ने पढ़ा था, if you remember, multiple and submultiple angles. Yeah, multiple and submultiple angles. इसमें दो तरह का एंगल होता है, डबल और ट्रिपल. तो डबल एंगल में we have 3 sin cos tan, ट्रिपल एंगल में भी 3 sin cos tan. डबल मतलब एंगल इज 2 times of theta. ट्रिपल मतलब एंगल इज 3 times of theta. सो आई होप तुम लोग ये फॉर्मूले पढ़ के आए हो. साइन टू थीटा के मेरे पास कितने फॉर्मूले होते हैं? 2. 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. कॉस टू थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं. कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. और tan टू थीटा का एक ही फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इधर प्लस है, यहाँ पे माइनस, बाकी सब सेम. आई होप यू ऑल नो दिस फॉर्मूलेज. सो एंड सेम इज फॉर 3 थीटा, sin 3 थीटा, 3 sin थीटा, 4 sin थीटा एंड सो ऑन. नाउ ये दो तो ठीक है, बट इसके अलावा I personally think there are 4 more formulas which you should remember with these. And those are, you might have done that, 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. Personally मेरे हिसाब से ये बहुत ही important formulas है, because बहुत जगह पे यूज होता है. 1 minus cos 2 theta is equals to 2 sin square theta. And last is 1 plus sin 2 theta and 1 minus sin 2 theta. Anyone knows this? 1 plus sin 2 theta is cos theta plus sin theta the whole square. And yes, same cos theta minus sin theta the whole square. So apart from these, we should know this so that my calculations become faster and easier. तो अभी के क्वेश्चन में what we have to do, जैसे कंपाउंड एंगल में हम लोग कैसा एंगल ढूंढते थे? कंपाउंड एंगल में कैसा एंगल ढूंढते थे हम लोग? a प्लस माइनस बी. सो अभी डबल ट्रिपल मल्टीपल सब मल्टीपल में कैसे ढूंढेंगे? 2 थीटा, 3 थीटा, या फिर थीटा अपॉन 2, हाफ हो गया ना, थीटा का थीटा अपॉन 2 एंड सो ऑन. इफ यू नोटिस, डबल एंगल में एंगल आधा हो जाता है. जो लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल 2 थीटा है, वो राइट हैंड साइड पे आधा थीटा हो जाता है. तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल थीटा है, तो राइट हैंड साइड पे एंगल क्या हो जाएगा? आधा थीटा बाई 2. एंड ट्रिपल में एंगल बिकम्स 1/3. मीन्स अगर 3 थीटा है तो ये हो जाएगा 1/3, मतलब डिवाइड बाई 3. 2 थीटा. वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. इससे क्या है? फ्रॉम दिस वी नीड नॉट बाय हार्ट द फॉर्मूले. वी कैन अप्लाई दिस लॉजिक इनटू द फॉर्मूले इटसेल्फ. इसका मतलब if someone asks me the formula of sin theta, तो it is 2 sin theta का हाफ हो जाएगा, theta by 2 cos theta by 2. This is an important observation so that you don't need to
You don't need to rut, remember the formula. You can remember this logic. Okay, let's move on to the questions. Here are the questions. Both questions are prove the following. What I said कि अभी मुझे ऐसा चश्मा पहनो कि मुझे एंगल क्या दिखे 2 थीटा और 3 थीटा. जैसे ही एंगल 2 थीटा 3 थीटा दिखा, यूज मल्टीपल एंगल्स. So यहाँ पे directly you can say this is a very simple question, but I have taken this because I need you to know the importance of this. ये जो मैंने लिखा था ना 4, this is very 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 important. Please remember this. तो 1 minus cos 2 theta है यहाँ पे, तो 1 minus cos 2 theta. So I can directly write 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta, and 1 plus cos 2 theta. 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. So simple. Prove हो गया. 2 2 cancel. Sin square theta upon cos square theta is tan square theta, which is equal to RHS. Simple. Now, this is important, interesting question. Let's look at this. यहाँ पे obviously I see LHS में 3x दिख रहा है, means 3 theta दिख रहा है. तो it is very simple. क्या यूज करना है इसमें? ट्रिपल एंगल. 3 थीटा दिखा तो ट्रिपल एंगल. सो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin x minus 4 sin cube x upon cos x प्लस cos 3x का 4 cos cube x minus 3 cos x upon sin x. राइट. अभी ऊपर से कॉमन आ रहा है कुछ, और शुड आई टेक एलसीएम? नहीं, साइन कॉमन आ रहा है ना. लेट्स टेक साइन कॉमन. साइन एक्स कॉमन. आई विल गेट 3 minus 4 sin square x अपॉन cos x प्लस यहां से cos कॉमन आ रहा है, सो cos x into 4 cos square x minus 3 अपॉन sin. ओके. अभी तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो फिर कॉमन लेके फायदा नहीं हुआ ना कुछ. आई डोंट थिंक वी कॉमन लेके कुछ फायदा हुआ. सो लेट मी जस्ट रब दिस स्टेप. we'll directly take LCM, right? We'll directly take LCM. So if I take LCM, ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. So I will get 3 sin into sin, sin square x minus 4 sin raised to 4x plus cos यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 cos raised to 4x minus 3 cos square x upon cos x into sin x, sin x या फिर sin x into cos x. Now, what should we do now? We can take something common now. See, but common कहाँ से लूंगा मैं? एक यहां से, इसमें से और इसमें से. 3 कॉमन आ रहा है, 3, राइट. एंड बाकी के दो में से व्हाट इज कॉमन फ्रॉम हियर एंड हियर? 4 कॉमन आ रहा है. सो लेट्स डू दिस. इंस्टेड ऑफ 3 आई एम टेकिंग -3 कॉमन. सी माइनस ही जानबूझ के लिए, क्या होगा? -3 कॉमन, क्या बचा? cos स्क्वायर x. -3 कॉमन लिया है तो प्लस का माइनस sin स्क्वायर x. सिमिलरली यहां से 4 नहीं, क्या कॉमन लूंगा मैं? यहां से 4 ले लो, +4 कॉमन.
तो क्या बचेगा, cos raised to 4x. So cos raised to 4x, I can write cos square x the whole square minus same as sin raised to 4x. Sin raised to 4x को I can write sin square x the whole square upon sin x into cos x. बराबर. तो देखो cos square minus sin square, this is the formula for here cos square minus sin square, I can write cos 2 theta. तो डबल हो जाएगा ये. So this will be minus 3 cos 2 theta plus 4 into, यहाँ पे क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a की जगह पे ये है, b की जगह पे साइन स्क्वायर है. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन इस साइन कॉस को भी, इफ आई सी द अदर साइड, मुझे 2x चाहिए. 2x मेरे पास नीचे साइन कॉस x में है, इसको 2x में कन्वर्ट करने के लिए I मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 2. ये एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार डिवाइड कर दिया. तो 2 sin x cos x, कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा. आई कैन राइट इट एज sin 2 theta. So now my question will look like minus 3 cos 2 theta. ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो क्या हो गया, 1. cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वापस इसके जैसा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज अगेन cos 2 theta. तो प्लस 4 cos 2 theta और बाजू में कौन है, इंटू 2 अपॉन नीचे 2 sin x cos x. अरे एंगल x से थीटा का भी हो गया अपना. हियर एंगल इज x, सॉरी, एंगल इज x. सो हियर आई विल गेट 2 cos x. हाँ, 2 cos x x अपॉन sin 2x एंड बस क्वेश्चन इज ओवर. माइनस 3 प्लस 4 1. सो ऊपर बचा 1 cos 2x इंटू 2. तो 2 cos 2x अपॉन sin 2x. अभी cos अपॉन sin क्या होता है, cot. तो 2 cot 2x which is equal to RHS. Very good question, but we finally did it. Yes. So this is a example on how to use multiple and sub multiple angles. कैसे यूज करना है, चश्मा बदलो, चश्मा में खाली दिखना चाहिए 2 थीटा और 3 थीटा. इफ आई सी दोज एंगल्स, डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स. ओके, so if I use this formula, I can easily get the answer. So let's look at this example, but I guess time is up. So we will look at this another time. Now we are left with only one part. Sorry, I guess 2 parts. कौन सा था? So next Saturday, when you meet me, we will do फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन. 4 चीज बोला था, कंपाउंड एंगल्स, एलाइड एंगल्स, मल्टीपल सब मल्टीपल, फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन. So we'll do this question and then proceed with factorization, defactorization and last part which is triangles. ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, सबसे फेमस प्रॉपर्टी, भले ही कौन सा भी ट्राइंगल हो, एवरी ट्राइंगल हैज दैट प्रॉपर्टी. क्या होता है वो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 degrees. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो अगर सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, तो हाउ डू वी यूज दैट इन ट्रिग्नोमेट्री? a plus b plus c equals to 180 degree. How do we use that in trigonometry? वो हम लोग को देखना है. So these both part will cover in the next session, which is on next Saturday. Okay. So I hope to see you next Saturday, and then we'll see these questions. I hope it is fine. Chalo.
डन. सो बाय बाय फॉर टुडे. एक वीक के बाद